Good morning everyone. See, today we will start our new topic, circle. So see, what is the shape of a circle? See, first of all, this is your circle. Okay. Now see, what is the definition of circle? A circle is a path of all the points that are equidistant from a fixed point on a given surface. See, what is a circle? A circle is a path of all the points. See, you can take any point from there. What is the center of the circle? This is the center of the circle of the point that are equidistant from a fixed point. See, distance from this point, or you are taking the distance from this point, all are equal in a circle. Okay. किसी भी पॉइंट से आप एक सेंटर से आप जब भी मेजर करोगे, कहीं भी पूरे सर्कल में आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो. ओके, इट इज ऑलवेज इक्वल. It is always equal. Its distance is always equal. Now see, parts of a circle. Now we will study about parts of a circle. So these all things you have to note down in your classwork copy. See, parts of a circle. See, first of all, this is your circle. Okay, you everybody know this is the center of the circle. So what is the center of the circle? That you have to define here. Center. A point in a plane form, in a plane from which all the points are equidistant. एक ऐसा पॉइंट लेना है आपको एक सरफेस, प्लेन सरफेस में. मीन्स इन अ सर्कल यू हैव टू टेक दैट पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर. मीन्स आप इस पे से इस सर्कल के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, बट इट विल बी ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द सेंटर. दिस इज नोन एज योर सेंटर. सेकेंड इज रेडियस. व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल? अ लाइन सेगमेंट with one end point at the center and the other end point on the circle. Now what is radius? A line segment with one end point at the center. एक सेंटर से एक पॉइंट हमने लिया एंड द अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. अब आप ऑन द सर्कल, किसी सर्कल के किसी भी स्पेस पे किसी भी जगह एक एंड पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ही ले लिया. अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए. अब एक पॉइंट क्या हो गया, ये वाला, इट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज योर एंडिंग पॉइंट. सो दिस इज नोन एज योर रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ सी, डायमीटर. diameter. What is diameter?
a chord that passes through the center of the सर्कल। ओके, अब आपके इसको रब कर दीजिए, ठीक है। सेंटर तो आपको लेना ही है सर्कल में। अ कोड डेट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन पास करती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ओके, दिस इज नॉन योर डायमीटर। Now see, next, circumference. What is circumference? The length of the boundary of the circle. The length of the boundary of the circle. ओके, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री मीन्स सर्कल की कौन सी बाउंड्री? दिस वन बाउंड्री। दिस इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये वाली जो बाउंड्री है इसको क्या कहेंगे हम? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ सी, कोड। अ लाइन सेगमेंट with its end point on the circle. Now listen यार, इसमें ऐसा बोला गया है कि a line segment with its end point on the circle. अब end point आप यहाँ पे ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। इट इज बट इट विल नॉट बी ऑन द सेंटर। एंड पॉइंट मीन्स लास्ट पॉइंट ये वाला मान लो, ठीक है, या फिर लास्ट पॉइंट नीचे से मान लो, कहीं से भी ले लो, है ना। तो इट इज नोन एज योर कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट विथ इट एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज योर कॉर्ड। नो आर्क। व्हाट इज आर्क? अ पार्ट ऑफ सर्कल between any 2 points on the circle. A part of circle between any point on the circle. Just suppose, इसको रब कर दीजिए पहले। Just suppose you have taken the points. This is your P point, this is your Q point. Okay, here you are taking R point, here you are taking S point. Now see, a part of circle between any 2 points on the circle. अब इन दोनों points के बीच का जो part है means this part. Okay, arc means arc का shape कैसा रहता है? This is your shape of arc. So इन दोनों के बीच में जो ये arc बना हुआ है, this is your known as your arc. R और S के बीच का जो distance है, this is your arc of R and S. Between the R and S आपके बीच जो आर्क बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? आर्क। ओके, अब आप इसके बीच का भी ले सकते हैं, R और P के बीच का, ओके, S और Q के बीच का भी ले सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मेजर आउट द डिस्टेंस गिवन बिटवीन द पॉइंट्स। नाउ सी, व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल मीन्स दिस इज योर सर्कल, ओके, एंड अगर हम इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दोनों के बीच में एक डायमीटर ड्रॉ कर दी हमने, तो ये इट विल बिकम योर हाफ सर्कल एंड दिस इज नोन एज योर सेमी सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल is known as semi circle. Okay, understood? These all things not in your classwork copy.
Now see, we will start exercise 12E. Draw a circle and answer the following. Exercise 12E. See A. एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स बनाने हैं. एक्सटीरियर मीन्स आपको पहले ही बता रखा है, हम जब हमने ट्राइंगल्स पढ़े थे उस टाइम पे कि एक्सटीरियर मीन्स बाहर जो पॉइंट्स दिए होते हैं, इंटीरियर मीन्स अगर कोई शेप दे रखा है उसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखा है उनमें हमें एक्सटीरियर पॉइंट्स डालने. जस्ट सपोज दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल गिवन हियर. Okay, this is your center point. Now see, mark and name 2 points in the exterior of the circle. Exterior of the circle means this is 2 points आप ले लीजिए यहाँ पे, एक इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो. Take 2 points in the exterior of the circle. means circle के बाहर आपको 2 points mark करना है. Just suppose this is your P and this is your Q. Name it. B वाले में अब यहाँ पे लिख सकते हैं points P and Q. ओके, बी वाले में आपको लिखना है मार्क एंड नेम 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अब इंटीरियर ऑफ द सर्कल में आप 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दीजिए. जस्ट सपोज दिस इज योर L एंड दिस इज योर M. एनीवेयर यू कैन मार्क इन द इंटीरियर एंड एनीवेयर इन द एक्सटीरियर. ओके, इट डजंट मैटर एट वेयर यू आर मार्किंग इट. सो पॉइंट्स L एंड M. Okay, next in the interior. Now mark and name 2 points on the circle. Now on the circle means circle के ऊपर आपको 2 points मार्क करना है. ये आपने मार्क कर दिया. This is your X and this is your Y. So put your points X and Y. Now see, mark and name the 4 points in the circular region. Circular region means इस पूरे सर्कल के ऊपर आपको 4 पॉइंट्स मार्क्स करने हैं. अब देखो पी क्यू आपने ले लिया, एल एम आपने ले लिया, एक्स वाई आपने ले लिया. अब आप ए बी सी डी ले लो. दिस इज योर ए बी सी डी. सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. ओके, सर्कुलर रीजन के ऊपर. नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, now see, a line segment with one end at the center and the other end on the circle is called a chord. This is false or true, that you have to find out. So by the definitions I have given you, from that you can identify whether it is a chord or whatever or another. A line segment with one end at the center and the other end on the circle is called a chord or radius. It is known as radius. So the question is given here wrong, so it is your false. B, the path of a point equidistant from a central point from a circle. This is your true. C, any line segment with its end point on the circle is called the radius. So this is your false. It is not your radius. False. B, any line segment with its end point on the circle and passing through the center is called the diameter. Yes, this is called the diameter. This is your true. E, the diameter of a circle is the shortest chord of the circle. No, it is the longest chord of the circle. So this is also your false. F, there can be any number of radii of the circle. Yes, there can be any number of the radii. It is your true. ओके, आप कितनी भी रेडियस डाल सकते हैं सर्कल के अंदर. जी, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. येस, यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ द डायमीटर इन द सर्कल. एच, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर. नो, इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर. सो इट इज योर फॉल्स. आई, the part of a circle that lies between 2 distinct points on the circle is called an arc. Yes, 2 distance point के बीच में जो point बन रहे हैं, जो arc बन रहा है उसको arc कहते हैं. तो this is your true. J, the diameter of a circle is called a chord of the circle. Yes, this is your true.
Okay, now see, question number 3. Given alongside is a circle with center O. See, this is the circle given here. This is the point. Now see, O. This point is given A. This is your F. This is your G and E. This is your C. This is your D. This is your B. Okay. And this is your A, C. Okay. Now see, name any two chords. First one, you have to give the name of two chords. Which are the chords given here? कोड हम यहाँ पे देख सकते हैं ए सी और जी ई. तो कोड ए सी एंड जी ई. सेकेंड में नेम एनी टू डायमीटर्स. अब डायमीटर आपको फाइंड करनी है. इसमें दो डायमीटर कौन कौन सी दे रखी है. अब देखो, ये एक डायमीटर हो गई पूरे सर्कल पे, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक ये डायमीटर हो गई. तो डायमीटर जी सी. Okay, and this one is also the diameter, that is GC and AD. Now see, C, name two radii. Radii means radius. तो ये एक रेडियस, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेडियस ये हो गई. इस पॉइंट से सेंटर से लेते हैं रेडियस को, तो ओ ए एंड ओ सी. ओके. डी वाले में देखो, नेम एनी टू आर्क. आर्क आप कोई से भी दो आर्क ले लो. ए जी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, डी ई ले सकते हैं, ई एफ ले सकते हैं. तो आर्क इसको ले लो आप, चाहे थ्री पॉइंट्स भी ले सकते हैं. इट डजेंट मैटर दैट यू हैव टू टेक द 2 पॉइंट्स ओनली. सो डी ई एफ और ए बी सी. ओके, सो मेनी आर्क्स आर देयर. ए बी ए जी, जी ए सी, जी और जी एफ ई. एनी आर्क, एनी 3 पॉइंट्स यू कैन टेक हियर. ओके. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट द गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ. स्टेट द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक सर्कल गिवन है आपको यहाँ पे. आपको सिर्फ बताना है कि ये कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं. दिस इज योर सेंटर ओ. दिस इज योर पी, ए बी, क्यू, आर. नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग अबाउट ओ पी. ओ पी क्या दे रखा है इसमें? ओ पी इज द रेडियस दे रखी है. ओ पी क्या है? दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. बी वाले में क्यू आर दे रखा है. क्यू और आर. क्यू आर क्या है? दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर. सी वाले में ए बी. ए बी, व्हाट इज ए बी? कोड है ए बी. दिस इज कोड ऑफ द सर्कल. डी वाले में देखो, ए क्यू बी. ए क्यू बी क्या है? ए क्यू बी, दिस इज एन आर्क. ओके. ई वाले में देखो ओ. ओ क्या है? दिस इज नोन एज योर सेंटर. ओके. सो दिस एक्सरसाइज इज completed over. Now see exercise 12F. Before starting exercise 12F, we will start some topics given here. That is triangle. What is triangle? What is quadrilateral? This already you know. What is pentagon, hexagon, heptagon, octagon and nonagon and decagon? That you have to find. So first of all, write about pentagon. No, first of all, write regular and irregular polygons. Regular and irregular polygons. Okay. See now, what is regular polygons? Right here, all sides are equal.
all sides are equal. Okay, and in irregular polygons, write here all sides are equal and all angles are also equal. Okay, and here unequal sides and unequal angles. Okay, so now we will study about the parts of regular polygons. First of all, triangle. Already know about the triangle that three sides are equal, three of the sides are equal. The sum of the angles is 180 degree. तो क्वाड्रिलेटरल और भी मैं लिखवा देती हूँ आपको ट्राइंगल में. तो it has three sides and sum of its angle is 180 degree and the shape of the triangle is this one. Now quadrilateral. Okay, quadrilateral, it has four sides, but it's all the sides are not equal. It's sum of all the angles is 360 degree. Okay, अब हम पढ़ेंगे पेंटागन. What is pentagon? In that you have to find it has 5 sides and the sum of the angles is 540 degree. What is the shape of the pentagon? This is the shape of the pentagon. How it has 5 sides, that's why it is known as pentagon. See, the number of sides is 5 here. Now hexagon. It has 6 sides and the sum of the angles is 720 degree. Now octagon, it has octagon में 8 sides होती है, 8 sides and sum of sides, sum of angles is 180 degree. Okay, only this much is important for you. Now see exercise 12F. 12F. See, first of all, check whether the figure given in each of the following is a polygon. Give reason if it is not a polygon. Okay, polygon में क्या होता है? Always 4 sides are equal in a. Always it is 4 side means 4 sides होती है उसमें. तो अगर ये polygon है तो आपको इसमें शो करना है, नहीं है तो वो बताना है आपको कि क्यों नहीं है. Now see, first of all we'll do filling the blanks. Question number first is your homework, that is you have to do by yourself. Fill in the blanks. A. If all the sides of a polygon are equal, then it is called
अगर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर। जस्ट नाउ वी हैव स्टडी, अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो इरेगुलर पॉलीगन, दिस इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। नाउ सी बी, इफ अ 5 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड, जिस पॉलीगन में 5 साइड्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें 5 साइड्स होगी तो उसको हम बोलेंगे पेंटागन। सी वाला देखिए, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ हेप्टागन इज, अब हेप्टागन में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 720 डिग्री। डी, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है 6। ई, इफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री इट इज नोन एज योर क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 360 डिग्री का एंगल होता है, सम ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री, सो दिस इज नोन एज योर क्वाड्रिलेटरल। नाउ सी थर्ड वाले में आपको शेप बताना है। फर्स्ट वाला शेप आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5 साइड्स आर गिवन हियर, सो इट इज नोन एज योर पेंटागन। बी वाले में देखिए 8 साइड्स दे रखी है इसमें, तो दिस इज नोन एज योर ऑक्टागन, 8 साइड्स मीन्स ऑक्टागन। सी वाले में देखिए 3a मीन्स 3 साइड्स मीन्स इट इज नोन एज योर ट्राइंगल। डी वाला देखिए 4 साइड्स है, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। ई वाला देखिए, ई वाले में 6 साइड्स है, सो दिस इज नोन एज योर हेक्सागन। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, चेक वेदर द फिगर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन, गिव रीजन इफ इट इज नॉट। ओके, तो अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो साइड्स काउंट करना है कि ये पॉलीगन है या नहीं है, तो दैट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व द चैप्टर चेकअप ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर अवर न्यू चैप्टर, दिस चैप्टर नंबर 17, डाटा हैंडलिंग। Okay, thank you.